मैं उनको सॉल्यूशन दे नहीं पाता हूँ। मैं उनको काफ़ी डिसअपॉइंट करता हूँ कि उनको रियलिटी चेक देके कि नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं ये सारा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। मैं बस यही बोलता हूँ कि पढ़ाई कर लो। मैंने पिछले 24 साल में 2 फिल्में की थी हिंदी, और पिछले 1 साल में मैंने 4 फिल्में कर ली, जस्ट बिकॉज कि पूरा लुक ही चेंज हो गया। I could see the love that people have for the show, for him, for for The you, ensemble, for the yeah. entire world. I think, of the show is, I think, balanced on this kernel of really loving what you do. कि जो बोल रहे थे तुम बहुत अच्छा बोले, क्या सोचा था? ये कहाँ पाए जाते हैं ये? सर से आप पूछिए कि लौकी का बीज कौन सा है, टिंडे का बीज कौन सा है। हाँ, वो सर बता सब पाएंगे। पूछो, उसके बारे में तुमको बताते हैं। Hi and welcome to E-Times. My name is Jigar Shah. Today we have with us the cast of Kota Factory, Jitendra Kumar, Tilodrima Shom and Rajesh Kumar. Guys, I've seen 3 episodes and I wanted to see more. I think that's the best compliment I can give you all right now from what I've seen. Now, Jitu Bhaiya, you are the most loved teacher on the internet right now. कभी हुआ है कि कोई बच्चा एक्चुअली आया है फिजिक्स का प्रॉब्लम लेके बताने के लिए, सर सॉल्व कर दो मेरी प्रॉब्लम ये है? ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम लेके आए हो, पर हाँ मतलब जनरली जो उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है उसके अराउंड वो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट आते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि हाँ मतलब भाई मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ। तो बट हाँ, जो परसेप्शन उनके दिमाग में जाता है वो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैंने टीचर प्ले किया और वो मुझे टीचर समझने लगते हैं। सो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। बट हाँ, होता है ऐसा। तो बेसिकली आप इंटरनेट के आगे नहीं आंट हो, बेसिकली लोग आगे पूछते थे सॉल्व हाँ कर। बोल सकते हो, बट मैं उनको सॉल्यूशन दे नहीं पाता हूँ। मैं उनको काफ़ी डिसअपॉइंट करता हूँ कि उनको रियलिटी चेक देके कि नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं ये सारा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। मैं बस यही बोलता हूँ कि पढ़ाई कर लो। शायद बेटर हो जाए चीज़ें। Okay, Tilotama, in your first scene, you're explaining the equation for sodium hydroxide. I literally dropped my phone because at one point I hate science. I can't understand equations, but I still had a teacher who explained to me in a very sincere manner the way you taught. So it took me back to my school days. But how much time did you learn that formula? I actually didn't take much time because I am a science student. I had science in school, but I was very weak in chemistry, especially organic chemistry. But then there was a wonderful teacher outside school, Mr. Gopinath, and वहाँ सब जाते थे ट्यूशन के लिए, और वो जिस तरीके से पढ़ाते थे, everybody was in love with Mr. Gopinath more than they were with chemistry, And I think, but that's the thing about a good teacher. Yeah. They make you fall in love with the subject because they are so invested and they love this. And I think that's the power of the phenomena of Jitu Bhaiya. And to to see that in action in Kota, I could see the love that people have for the show, for him, for for The you, ensemble, for the yeah. entire world. I think of the show is, I think, balanced on this kernel of really loving what you do. Yeah. And I think because of Mr. Gopinath, I was so in love with organic chemistry, and फिर वो छूट गया. And then when Kota Factory, I had this fancy. I was like, yes, this is. I feel awesome to come back to, you run away from things and then you come back to it, and it all reminds you of this just sense of gratitude of having had that one good teacher who can make you feel excited about life again. Rajesh sir, I'm going to take few names. I want you to react to them. Differential equations, vector algorithm, matrices, optics, and कुछ और भी था, मैं भूल गया हूँ, अब तो मुझे याद भी नहीं है, because when these names were taken in the show, I was scratching my head, क्या है ये सब? नहीं, क्या से ज़्यादा क्या है कि मेरा और मैं मैथ्स का जो टीचर बना हूँ, तो मेरा और मैथ्स का 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है। 10th में आई रिमेंबर कि एक बार यूनिटरी मेथड सॉल्व कर रहा था। इट टुक मी गुड 4 hours टू फाइनली फिगर आउट x एंड y कि x फादर है और y बेटा है। तो x तो जब 5 आया तो आई सेड कि ये बेटा हो गया, अभी बाप का एज निकालता है। वो -2 गया था, सो मतलब y केम -2। सो सिंस देन आई हैव ड्रॉप्ड मैथ्स इन माई लाइफ and I was so scared, so I had requested everyone on the फर्स्ट टाइम जब ऑफर हुआ था
कि प्लीज़ मुझे एक भी क्लास मत देना करने के लिए क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है इस सब्जेक्ट से तो वो रिक्वेस्ट इन्होंने माना एंड थैंकफुली आई हैड ऑल द सीन्स विद जीतू एंड तिलोत्तमा टू यू नो कि जो क्लासरूम से बाहर था सो आई एंजॉयड दैट मोर बाकी जो बोल रहे थे तुम बहुत अच्छा बोले क्या सोचा था ये कहाँ पाए जाते हैं ये सर से आप पूछिए कि लौकी का बीज कौन सा है, टिंडे का बीज कौन सा है, हाँ वो बता सब पाएंगे। पूछो उसके बारे में तुमको बताते हैं बिकॉज मेरा मैच इज प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन बस उधर बस। मैं उधर मेरा लाइफ भी एक्चुअली उतना ही है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन उससे ज्यादा यूज भी नहीं होता। यूज भी नहीं होता है ऐसा मत बोला मेरे घर पे दो इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं दो सीए लोग बैठे हुए हैं मेरे घर पे यार ये सब मैच के सब झाड़ दे रहे थे मेरे ऊपर मतलब मुझे नहीं आता मैच मुझे नहीं समझता नहीं मैं ठीक हूँ इधर वो सिर्फ झाड़ने के लिए होता है करते वो भी 1+1 2 ही है वो इतना ही है। एक और सीन था शो के अंदर तो लड़की 30 मिनट वाले पोयम से मानी या 4 दिन वाले पोयम से मानी किससे मानी लड़की बताओ जरा मेरे को मैं भी मेहनत बहुत करूं प्यारा सीन था टू गुड इट वाज इट्स फैबुलस सीन या आई थिंक वो तो अभी जब सीजन आएगा तो देख के पता चलेगा कि किससे बनी मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या बट आई होप कि एक दिन वाली पोएम से मान जाए। But also, Jitu Bhaiya, one of the important scenes which for me I took back home was the mental health conversation in the show, and I loved the way it was mentioned very casually. ऐसा कुछ बड़ा हवा नहीं बना है mental health. Was it also what you took back with those scenes? हाँ मतलब वो बहुत अच्छे से लिखा गया है और बहुत अच्छे से आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर ने उन्होंने बहुत अच्छे से शूट भी किया है और वो काफ़ी एक पॉइंट था कि इसको बहुत मैटर ऑफ फैक्ट लेंगे इस चीज़ को बहुत ऑफ कोर्स उतना लाइक इंटेंस नहीं फील कराएंगे ऑफ कोर्स चीज़ बहुत इंटेंस है Yeah. बट हम उसको इतना मतलब वही सारा पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ को हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ में बहुत रेगुलर मतलब जिस तरह से हम लोग बीमारी की कोई बुखार की दवाई लेते हैं उस तरह से मेंटल हेल्थ को लेना हम लोग स्टार्ट करें तो वो एम था कहीं ना कहीं कि उस सिचुएशन से कोई भी गुजर सकता है स्टूडेंट्स टीचर्स कोई भी मतलब हमारे आसपास बहुत सारे लोग उन चीज़ों से सफ़र करते हैं बट वो चीज़ें अंदर ही अंदर रहती हैं और क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है सोसाइटी का प्रेशर है कि पता नहीं हम लोग इस चीज़ को बाहर बताएंगे तो लोग हमें किस तरीके से लेंगे तो वही एक एम था शायद राइटर डायरेक्टर का और उस तरीके से वो दिखाने की कोशिश की है एंड ऑफ कोर्स मतलब मुझे तो हमेशा से लगता है कि मतलब वेन एवर यू नीड हेल्प एनी काइंड ऑफ हेल्प यू शुड गो आउट एंड बेझिझक तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प लेनी चाहिए चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो और चाहे वो मेंटल हेल्प हो चाहे किसी भी तरह की हेल्प हो वो तुम्हें अपने जो भी जिनको भी तुम जानते हो तुम्हें वो हेल्प उनसे सीख करनी चाहिए। Rajesh sir, it's been 20. Okay, I'll take a step back from Kota Factory right now. It's been 20 years of Rosesh Sarabhai. This year 20 years we'll complete. And for a change, I'm seeing in a very different role as Gagan sir right now. Do you often feel that Rosesh overpowers a lot of other characters that you do? It does. मतलब इतना ओवरपावर हो गया था कि एक समय आया था when I went to ask for work, they said it's very difficult for us to break image. So उस वजह से मैंने वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाया और मैंने अपने आप को गंजा कर लिया था. And I went out for work and you believe me कि last 25 years, it's been 25 years for me in industry. मैंने पिछले 24 साल में 2 फिल्में की थी हिंदी और पिछले 1 साल में मैंने 4 फिल्में कर ली जस्ट बिकॉज कि पूरा लुक ही चेंज हो गया तो ओवर पावर तो कर ही जाता है बट क्या करोगे अब उस आप मतलब अब जैसे स्वर्गीय पंकज उदास जी आज तक चिट्ठी आई से जाने जाते हैं गब्बर सिंह आज तक उसी से जाना जाता है तो एक कुछ काम आप ऐसा होता है कि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है बट एज आई ऑलवेज से आई डू नॉट हैव एनी बैगेज आई जस्ट कैरी लगेज Okay. And actually 20 years जो mention कर रहे हो तो another favorite line of mine which I always use it's been 2 decades still not decade. No, but for me it's one of the most iconic TV झलक दिख रही है characters. मुझे झलक दिख रही इसमें। किसकी झलक देगी Chemistry. DK, rate of DK. DK हो रहा है DK हो रहा है No, but Rosesh is one of the most iconic characters in the last 20 years that's come on television which is still like which even the government used it for some promotion traffic police or something they used it for then I recited it for them. Yeah, so tweet किया फिर then they said कि why don't you recite it during corona
तो वो सारे poems पे recite किए. So he even got the hair look done, and then everything even I got. So, anyways, quota. yes. Now, okay. Now, you see your interaction with Jitu Bhaiya, the two major scenes that in the first 3 episodes that I've seen. First is friction, wherein you give him suggestion and he doesn't take it, and second the tea session which happens later in the third episode, if I'm not wrong. So had you known about him before, or how did you break ice with him? Because these Jitu as Jitu? Yeah. मतलब not as Jitu sir. No. Okay. वो बहुत confusion होता है. In my last Jitu interview, कौन सा वाला है? इधर वाला इधर वाला. In my last interview, I actually asked him that how come your character also called Jitu? Yeah. No, it's very easy because क्या हो गया था कि एक तो काफी काम देखा हुआ था जीतू का, not only before Panchayat and before Kota, a lot of work of his, and I was like great fan of his work. So I remember first time मैं भोपाल में जब शूट कर रहे थे तो वैनिटी के बाहर में गया था, and I just felt कि I know him since so many years. Wow. Though it was the first time I was going to meet him, and I just wanted to say hello to him because तो मैंने नॉक करके कि अरे यार जीतू, अरे बड़ा अच्छा लगा मिल करके. You remember that first meeting? तो वो ऐसा his persona is such ना कि आप already you feel in love with him, and you feel कि आप flow में हैं, आप इस आदमी को जानते हैं और बहुत समय से जानते हैं, भले आपने एक दूसरे को ना देखा हो. So that admiration was always there, and the way he performs, I mean जो सहजता और सरलता की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं. इनफैक्ट तिलोत्तमा से मैं बहुत प्रभावित हुआ इस बार कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट को कितनी सहजता से आप कह जाते हैं और वो आपको चिपकता है. आई थिंक दैट वाज द लर्निंग फॉर मी एज अ परफॉर्मर ऑल्सो, कि जब मैं अपना सीन कर रहा था तो आई वाज रिमेम्बरिंग बोथ ऑफ देम, बिकॉज प्रतीश बीच में आकर के बोलता था सर 2 नॉच कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं. आई रिमेंबर आई वाज डूइंग एन एड एंड द डायरेक्टर सेड बहुत अच्छा रिहर्सल किया राजेश, बहुत अच्छा, अब ये काम करते जो आपने किया इसका 100% कम कर दीजिए. उनको बोलना चाहिए आप स्कूल वापस जाइए, आपका मैथ्स बहुत वीक है. 100% So for both of them I can say that I have learned कि 100% कम में कैसे एक्टिंग होती है. But do as actors you feel like switch like fans like दो नीचे कर दो, ऊपर कर दो. How does it happen? देखो ना इन दोनों को, अब पूरे 3 एपिसोड में इनफैक्ट जीतू the way you perform, I mean और एक और चीज जो शायद ऑडियंस को नहीं पता होगी जीतू के बारे में, you do 10 takes, you do 12 takes, you do 30 takes, whatever takes you want. He will never fumble once. I have seen that one shot. इसके सेकेंड सीजन में खास करके पूरी राउंड मतलब वो था स्टडी कैम्प था और वो कुछ 7 या 8 टेक हुआ था एंड ही नेवर फंबल्ड. और वो मेरा पीछे आउट ऑफ फोकस रिएक्शन है इस पे, सिर्फ ऑ में है कि ये कैसे कर सकता है. But Tilottama, with your scene, I think at one point I see you as a catalyst in the show, because whatever you say to him, it kind of brings a change in his behavior. Like you tell him about के how does he go ahead and talk to him, and he says that chemistry teacher नहीं आने वाली है अगले साल. So how was that feeling to be that catalyst part? I'm very happy to be part of a show that is so loved, and to play a character in the show that supports the existence of the teacher who's most beloved. And I love playing Pooja Didi, whose purpose is really to support the children, the students, to support Jitu. And so it was nice. I'm glad I was not some antagonist over because then the country would hate me. And I'm very glad when I read like, oh, is she supporting Jitu Bhaiya, or is she again Jitu? She's supporting, great. So I'm very glad to play. But in the last one year, the web has played a big part in your career, because Night Manager, Yes. this was both have given you Absolutely. enough roles, enough meat to play as an actor, and also made you move far more commercial as what otherwise what was happening with you. Yes, absolutely. So which is why I didn't want to wreck it by, by doing this one show where I'm going against the greatest, the most loved teacher in the world. So I'm very happy that what Pooja did, and she genuinely cares, and she loves chemistry, and she really cares, and she knows the integrity that Jitu brings to the work, and
and it's important for her that that spirit is protected. True. True. Okay, my last question to all of you all what's there been that one teaching by a teacher or a friend that has stayed with you throughout? टीचर आई थिंक टीचर का एक मतलब मेरे कोटा में जो टीचर हैं उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छी सी एक चीज़ की थी। काफ़ी प्रेशर में थे हम लोग, हमारा एग्ज़ाम आने वाला था आईआईटी का, और वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे। 2 साल आईआईटी में जाना है, आईआईटी ऐसा होता है, आईआईटी वैसा होता है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे। एंड लाइक फॉर अ चेंज एग्ज़ाम से 1 वीक पहले वो आए और वो आके बोर्ड पे उन्होंने कुछ 100 नाम लिखे, ठीक है। और वो उन नामों में से मतलब कुछ जाने पहचाने नाम थे, कुछ बड़े नाम थे सारे। सो सर ने पूछा कि ये इनमें से कुछ ये सारे नाम जानते हो? मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंस नहीं, कम्युनिटी में? जनरल उन्होंने 100 नाम लिखे, और वो काफ़ी मतलब बड़ी पर्सनालिटीज़ के, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ के नाम थे। कुछ नाम पहचान में आ रहे थे, ऑफ कोर्स कुछ नाम हमको नहीं पता थे। तो सर ने बोला कि ये सारे नाम के बारे में क्या लगता है, जितने भी नाम तुम जानते हो? तो हर किसी ने बोला कि सर हाँ सर, बड़े लोग हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, बहुत कुछ किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। तो सर ने बोला कि इनमें से कोई भी आईआईटीएन नहीं है। तो ठीक है, तो अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ ख़त्म नहीं होती है और बहुत है लाइफ में कुछ करने को, और हर तरह से तुम कर सकते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे आगे जाके। सो कभी भी उस चीज़ को वैसे मत लेना। 1 वीक में एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग अपीयर करते हैं, एंड सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न ये नहीं है कि तुम सफिशिएंट नहीं हो या तुम इनफ नहीं हो या तुमने इनफ तैयारी नहीं की है। तुमने अच्छी तैयारी की है, बट अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत स्कोप है आगे जाने का और किसी भी तरीके से आगे जा सकते हो। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था उनकी तरफ से जो मुझे हमेशा याद है। बोलो तुम। ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं और वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आई रियली हैव हैड ग्रेट टीचर्स, मतलब स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, लाइफ में, दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में। बट स्कूल की बात करूँ तो पूर्णिमा गर्ग करके हमारी हिस्ट्री टीचर थी, और उनकी हाइट मतलब मेरी जैसी थी, और वो जब बैठती थी पढ़ाने तो टेबल पे बैठती थी वो, और उनके जो पैर हैं मेज़ को छूते नहीं थे, और उनके पैर ऐसे ऐसे हिलते थे वो जब पढ़ाती थी। इतना सेंस ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट हिस्ट्री, अबाउट व्हाट इज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, कि ये एक नज़रिया है, ये एक हिस्ट्री है, मैं तुमको 3-4 और बताती हूँ, क्योंकि स्टोरी है ना, हिज स्टोरी। अब स्टोरीज बहुत सारे हैं, सिलेबस में एनसीईआरटी के ये है। ये जो हमारा दिमाग खुला कि हिस्ट्री के भी वर्जन्स हो सकते हैं, उसमें जो एक एक्साइटमेंट, एंड दैट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एक्चुअली नो सब्जेक्ट इज on its own an island. And when you have a teacher who can help you see the connections between different subjects, then suddenly it becomes very exciting. So I really thank her for creating that excitement. Rajesh sir? For me, I have stayed in hostel since 7th year. अभी भी हॉस्टल में ही हूँ। फर्क इतना है कि अभी रूममेट 2 बच्चे और एक पत्नी है। But I won't say that only one teacher contributed, because I have lived with teachers only throughout my life. चाहे मतलब हॉस्टल में एक बार आप रह गए तो फिर सारे टीचर्स ही हैं। बट एक फनीएस्ट जो आज तक मुझे याद है वो हमारे बास्केटबॉल कोच थे हिंदू कॉलेज में दिल्ली में। तो हम लोग मैच हार के आए थे, एंड टू पेप हिम अप कि सर कोई बात नहीं, हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, तो मैंने बोला कि सर कोई बात नहीं सर, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, अगली बार देख लेंगे। कह रहे ना बेटे, बाजू नहीं रहेगी तो देखेगा कातिल ही। तो उसका अर्थ आज जीवन में ही निकलता है कि बी कैपेबल, कभी भी यू हैव टू फेस एनीथिंग इन लाइफ, एंड एज कोटा फैक्ट्री सेज दैट वी शुड नॉट dwell with mental health in such a way कि हम बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। there is scope, there is so much of there in open in life कि आप सब चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हमेशा बाजू बचा के रखना, नहीं तो कातिल ही दिखेगा। Cool. Thank you so much for your time, guys. Thank you so much.